दरबार आली है निजामुद्दीन चिश्ती का, बड़ा दरबार आली है बेशक निजामुद्दीन चिश्ती का। जहां में फैज जारी है निजामुद्दीन चिश्ती का। निजामी दर बदर जाने की तुझको क्या जरूरत है, बस एक दरवाजा काफी है निजामुद्दीन चिश्ती का। सदका दो सदका, सदका दो सदका, गंजे शंकर का। सदका दो सदका, गंजे शंकर का। महबूब इलाही सदका दो सदका, गंजे शंकर कर भी कि नदी मुझको मैं शोर मचा दूंगा। कर भी कि नदी मुझको मैं शोर मचा दूंगा। कर भी कि नदी मुझको मैं शोर मचा दूंगा। कर भी कि नदी मुझको मैं शोर मचा दूंगा। दीवाना हूँ दीवाना दीवाना बना दूंगा। दीवाना हूँ दीवाना दीवाना बना दूंगा। कर जिद पे मैं आऊँ तो सर दर से मिला दूंगा। हर जिद में मैं आऊँ तो सर दर से मिला दूंगा। हर मांगने वाले को दर तेरा बता दूंगा। बस सदका दो सदका, गंजे शंकर का। सदका दो सदका, गंजे शंकर का। मंगता खड़ा है देता है दुहाई। महबूबे इलाही, महबूबे इलाही, मेरे महबूब महबूबे इलाही, महबूबे इलाही। सदका दो सदका। Khaja Nizamuddin Awliya Mahbub Ilahi, the chosen one, the selected one. The real name of Khaja Nizamuddin Awliya is Sayyid Muhammad. Mahbub Ilahi is a title, means beloved of Allah, and not exactly Allah. Ilahi also means Rabb, Lord Almighty. So it has to be connected with the characteristics of Allah Almighty. Like we have Subhan, Rahman, Kareem, so we have Ilahi. Means beloved of Almighty Allah. Khaja Nizamuddin Awliya's forefather or the descendant of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated from Madinah Munawwara to Uzbekistan. Uzbekistan is in Central Asia. The family settled there for almost 2 centuries. Just before the Genghis Khan started his attacks on the Central Asia, people started migrating again. And migration bring them to India because India at that time it was one of the most safest destination for everyone. The grandfather of Khaja Nizamuddin Awliya, who came to Lahore and settled down in Badaयूं Sharif. Khaja Nizamuddin Awliya's father is Hazrat Ahmad Chishti. Altamash Badshah, King Altamash, appointed his father, Khaja Nizamuddin's father, as the city judge of Badaयूं, his mother, Bibi Zulekha, on 1236 AD. He was born in Badaयूं. He became exactly the 20th descendant of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coming from 2 sides, from Imam Hassan alayhi salam and Imam Hussein alayhi salam. Maraj al-Bahrain, meeting of 2 oceans. One ocean is Imam Hassan, the another is Imam Hussein. Bibi Zulekha brings Khaja Nizamuddin Awliya and the sister to Delhi. Khaja Nizamuddin Awliya's mother Bibi Zulekha carry forward the family legacy of knowledge and wisdom. She brought Khaja Nizamuddin Awliya under the guidance of best known scholars of that time. Hazrat Kamaluddin Zahid, Hazrat Alauddin Usuli, from whom he learned Quran, Arabic,
fiqh, Islamic jurisprudence, qiraat, tajweed. His teachers were actually amazed by the personality of Khaja Nizamuddin Auliya. And the teacher used to ask the student, Khaja Nizam, please remember us in your secluded prayers. When you are secluded from rest of the world, when you go in seclusion and when you make dua, prayer to Almighty Allah, do remember us. And at a very young age of 16, he became Islamic scholar. There is one of the Qawwal who used to travel from different khanqahs, Sufi monasteries, dargahs, and meet many Sufis, mendicants, darwishes, qalandars, mazdub, throughout Asian subcontinent, mostly in Indian subcontinent. When he reached the madrasa where Khaja Nizamuddin Auliya was taking his, getting his early educations, one of his teacher asked him, "O Qawwal, you visit different khanqahs, dargahs, meet many Sufis. What you have new for us this time?" With respect, he said. He said, "This time I met two saints. One is from Multan, whose name is Hazrat Bahuddin Zikaria Multani, who has such an aura of spirituality around his place that even when the maids, especially the females who are the murida or the disciple of the sheikh, when they grind flour, they grind it with dhikr, like La ilaha illallah, La ilaha illallah, Allahu Allah. They grind. Whereas on the other side is another mendicant, another Sufi, who has been placed and who has been living in near Lahore, place called Pakpatan, where in the night the moon comes over his monastery, his khanqa, and it feels like the moon himself guards his khanqa and creates a spiritual aura around his khanqa. And his name is Baba Farid Masood Ganj Shakar, and who is more into the Sufi music.
that very moment, Baba Farid Masood Ganj Shakar, this name struck directly to the heart. It's like an arrow crossed the heart of Khwaja Nizamuddin Auliya at a very young age. And what he used to do after every prayer, he used to chant, Ya Farid, Ya Farid, Ya Farid, Ya Farid. When he completed his education, he got qualified level to be a Qazi. So there was a mendicant living in Delhi, a Sufi Darwish living in Delhi. He said, O Nizamuddin, Qazi mashaw, cheez digar shaw. Don't become a Qazi, be something else. What this Darwish says, don't become a Qazi, be something else. What is more higher than this being a Qazi? So it was the question which came to his mind. And when Khwaja Najibuddin Mutawakkil Rahmatullah Alayh, the younger brother of Khwaja Baba Farid, sent him towards Pakpatan, Baba Farid himself was waiting in his monastery to receive Khwaja Nizamuddin Auliya. And when he saw Khwaja Nizamuddin Auliya, first of all he did greetings. Though in Islam it is said, if you are a resident of a place and someone comes, it is his right to do salutation for the person who is at his place. Baba Farid welcomed him by saying, "E Atishe Furaqat Dilha Kabab Karda, Sailab Ishtiyaqat Zanha Kharab Karda." The fire of separation from you has roasted my heart like kebab. Sailab Ishtiyaqat Zanha Kharab Karda. My soul has become dead or is become quite low in your separation again. And he said, Assalamu alaikum, Ya Nizam. So he said, Ya Baba Fariza, wa alaikum assalam, but it is my right to do the salutation and greeting. But he said, no, this is not a salam which I am doing on my behalf. This is a salutation and salam and greeting which has been coming from my ancestor, from a spiritual chain, to pass it on to you. This salam comes from Prophet Muhammad to his disciple, then to his disciple, till me, and now I finally convey to you. Khwaja Nizamuddin Auliya visited Baba Fariduddin Masood Ganj Shakar 7 times in his whole life, thrice when he was alive and 4 times after his death or when he passed away. Khwaja Nizamuddin Auliya, when he came, he stayed at the place called Namak Ki Sarai, which is near Archini, Mehroli Road. When Khwaja Nizamuddin Auliya's mother passed away, he stayed at the residence of Arz Rawat, but soon he was sent out. He stayed also near Hauz-e-Ilahi, but finally he came and settled down where we are sitting right now. This is called Chilla, the first permanent shelter of Khwaja Nizamuddin Auliya, where he spent almost 62 years. Somewhere it's written 64, somewhere 65. It is the very place where Khwaja Amir Khusro came at the age of 9 and became Murid of Khwaja Nizamuddin Auliya, disciple. In the history of Sufism, you will find a lot of Sufi mistakes in different silsilas. But I am especially inspired by Hazrat Nizamuddin Auliya for some special reasons. He devoted all his life, all his activities, all his works for others. असली इंसान वही है, असली आदमी वही है जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है. तो निज़ामुद्दीन औलिया ने अपनी सारी ज़िंदगी दिल्ली में चिल्ला निज़ामुद्दीन ने जिस खानकाह में बिताई और जहाँ भी उन्होंने ट्रैवल किया, उन्होंने सारे ज़िंदगी में जो भी अमल किया, जो भी काम किए,
वो अपने लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ दूसरों के लिए, और उनमें भी अजनबियों और गैरों के लिए किया जिनसे उनका कोई भी ताल्लुक नहीं था, यानी खून का रिश्ता नहीं था। क्योंकि वो ये भी कहते थे कि अपनों के लिए तो सभी करते हैं, असली इंसान वो है जो गैरों के लिए करे, जो अनजानों के लिए करे, जिन्हें वो जानता नहीं है, ज़रूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, मोहताजों के लिए। एक छोटा सा एनेक्डोट मैं आपको सुनाना चाहता हूँ विच इज़ रिलेटेड टू हज़रत निज़ामुद्दीन एंड अमीर खुसरो। व्हेन यू विल गो टू द चिल्ला निज़ामुद्दीन, देयर इज़ अ स्मॉल रूम अंडरग्राउंड where Hazrat Nizamuddin Auliya used to do meditation and the chilla, and in that room only Hazrat Amir Khusro was allowed to enter and nobody was allowed after Isha ki namaz. So one day when Hazrat Amir Khusro went after the namaz of Isha and he quietly sat down and Hazrat Nizamuddin was in prayer, और जैसे ही उनकी इबादत ख़त्म हुई तो उन्होंने वहाँ एक छोटा सा मिट्टी का एक कटोरा रखा था, उसमें बासी जौ की रोटियां पानी में भिगो के रखी हुई थी, वो उसको भिगो भिगो के खा रहे थे। तो अमीर खुसरो ने जब ये देखा तो उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने कहा, हुजूर मेरे ख्वाजा, ये क्या सितम है, ये क्या जुल्म है अपने आप पर कि सारी दुनिया को, सारी मखलूक को आप लंगर खिलाते हैं, तरह तरह के खाने खिलाते हैं, और ख़ुद ये बासी जौ की रोटी पानी में भिगो के खा रहे हैं। तो ये सुनकर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो से फरमाया कि ए तुर्क, ये चंद सूखे टुकड़े भी मेरे गले के नीचे से नहीं उतरते, ये सोचकर कि आज भी दिल्ली शहर की लाखों मखलूक में ना जाने कितने ऐसे होंगे जिन्हें आज भूख से नींद ना आई होगी। अगर ये खुदा का बंदा तरह तरह के पकवान खा लेगा तो कल खुदा को क्या मुंह दिखाएगा। जब अमीर खुसरो ने ये सुना तो उनकी आंखों से आंसू आ गए कि एक इंसान जिसने सारी ज़िंदगी भर रोज़ा रखा, देखिए इस्लाम में रोज़ा सिर्फ रमज़ान के महीने में होता है, और वो पूरे महीने आपको रोज़ा रखना होता है जिसमें आप सारे दिन भर में पानी तक नहीं पी सकते। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने सारी ज़िंदगी भर रोज़ा रखा, और जब रोज़ा खोलने का वक्त होता था तो उस समय वो सूखी बासी जौ की रोटी जो पानी में भिगो के रखी जाती थी कई दिन पहले से, वो खाते थे। किस्मत का सिकंदर हूँ, किस्मत का सिकंदर हूँ, मुकद्दर का धनी हूँ, किस्मत का सिकंदर हूँ, मुकद्दर का धनी हूँ, मैं पंजतनी 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 हूँ, मैं पंजतनी Amir Khusro was the most favorite disciple of Hazrat Nizamuddin Auliya, and he was a genius. He was a master of around 22 languages. Basically, Amir Khusro was a Persian poet, and also he did poetry in Arabic, Turkish, and he is said to be the founder of 3 languages. He laid the foundation of 3 languages. One is Hindavi, which is now called as Hindi or Khadi Boli Hindi. This name Hindavi has been given by Amir Khusro himself, and he declares that I am a Hindustani Turk and I give the name to this local language of the Dalaites, Hindavi, which later on became Hindi. The second language which he founded or laid the foundation is Urdu, and then the Punjabi language. Amir Khusro is said to be the first poet who wrote the songs, the bandishes in the Hindavi,
not only for his spiritual mentor Hazrat Nizamuddin Auliya, but also for the royal court of the Sultans of Delhi. He was under the 7 Sultans of Delhi, starting from Malik Chhajju till Ghiyasuddin Tughlaq. Amir Khusro was a historian, a polyglot, a lexicographer, a linguistic, and one of the greatest musicians of India, and a military commander under 7 kings and a Sufi mystique. Amir Khusro invented sitar, tabla and dholak, hundreds of rags and raginis in the Hindustani music, and he innovated different styles of Sufi music like Kaul, Kalbana, Tarana, Naqsh, Gul, Bahar, Basit, Tirvat, Chaturang, Suhela, Savela, Mukhammas, Marsiya, Khamsa, Sheher-Ashob, Rubaiyat Pesha Baran, and Sanat-e Munqalib. Amir Khusro, as a linguistic, so he used to play with words, and this playing with words he also introduced in his music, and he innovated a different style of singing called as Tarana. The Tarana style of singing has a very different kinds of words which appears to be meaningless, but they are meaningful and has been taken from different languages like Persian, Arabic and Turkish. Now I will recite an anecdote which tells that how Amir Khusro became the disciple of Hazrat Nizamuddin Auliya, and he wrote his special Rang, which is still sung and heard in the Dargah Nizamuddin Auliya today. कि एक बार हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानकाह पर अमीर खुसरो के वालिद अमीर सैफुद्दीन महमूद अमीर खुसरो और उनके एक बड़े भाई को हजरत निजामुद्दीन का मुरीद बनाने के लिए ले गए। जब वो दरवाजे पर पहुंचे तो हजरत अमीर खुसरो ने अपने वालिद से फरमाया कि आप अंदर जाइए और मैं यहीं चबूतरे पर बैठूंगा। तो उनके वालिद ने ताजुब से पूछा कि तुम तो मुरीद बनने आए हो, तुम अंदर नहीं जाओगे तो मुरीद कैसे बनोगे? तो हजरत अमीर खुसरो ने फरमाया कि जिस फकीर के पास आप मुझे लाए हैं, अगर वो वाकई में कोई ऊंचा पहुंचा फकीर है तो वो खुद ब खुद अपनी नजर से मुझे खींच के बुलाएगा, और अगर उसमें ऐसी ताकत नहीं है तो मेरा आना बेकार है और मैं यहीं से वापस लौट जाऊंगा। उसके बाद अमीर खुसरो के वालिद अंदर चले गए और कुछ ही सेकंड्स में एक मुरीद हजरत निजामुद्दीन का दौड़ा दौड़ा अमीर खुसरो के पास आया और कहा कि ए सत्य के अन्वेषक, ए सत्य की तलाश करने वाले इंसान, अगर तुम बाज परिंदे की नजर रखते हो तो फौरन भीतर चले आओ, और अगर तुम्हारा दिल जो है डावाडोल है और तुम रास्ते से भटके हुए हो तो फौरन इस दर से वापस हो जाओ। जब अमीर खुसरो ने ये शेर सुने तो वो फौरन समझ गए कि ये वाकई कोई पहुंचे हुए फकीर हैं, और वो दौड़े हुए सीधे हजरत निजामुद्दीन औलिया के कदमों में गिर गए, और हजरत निजामुद्दीन ने फौरन उन्हें बैत करके अपना मुरीद बना लिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया उस समय 22 बरस के थे और अमीर खुसरो 7 बरस के। जब मुरीद बन गए तो निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो से कहा कि ए तुर्क बच्चे, हमने तुम्हें आज से मुरीद बनाया, तुम्हें अपना बना लिया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में क्या ख्वाहिश है, तुम कैसा महसूस कर रहे हो कि आज तुम्हें तुम्हारा स्पिरिचुअल मेंटर, तुम्हारा महबूब मिला है। हजरत अमीर खुसरो कुछ देर चुप रहे और उसके बाद उन्होंने हजरत से ये इजाजत मांगी कि वो इसका जवाब एक फारसी अशार से देना चाहते हैं। हजरत निजामुद्दीन ने उन्हें इजाजत दी और हजरत अमीर खुसरो ने फरमाया कि मन तो शुदम तो मन शुदी, मन तन शुदम तंजा शुदी, ताकस नगु यद बादजी मन दीगरम तू दीगरी, खुसरो गरीबस्तो गदा उफ्तादा दर शहरे शुमा बहरे गरीबा बिन गरी। खुसरो कहते हैं कि मैं तू बन गया और तू मैं हो गया, हम दोनों अभी तक अलग अलग जिस्म थे जो इसी पल से एक जान हो गए हैं। अब ये किस नामुराद की मजाल है जो ये कह दे कि तेरा वजूद और है और मेरा वजूद और है। खुसरो एक गरीब आदमी है, एक मुसाफिर है जो तेरे इस अनोखे और अनजाने शहर में चलाया है। अब ये तेरी आंखों का, तेरी नजरों का ये तेरा फर्ज बनता है कि तू इस अनजाने अजनबी को अपनी कर्मों के नजर से नवाज दे। जब हजरत निजामुद्दीन औलिया ने एक 7 साल के बच्चे के मुंह से इतने उम्दा शेर सुने तो उन्होंने फरमाया कि ए मर्दे हकीकत, आ फौरन इस फकीर के सीने से लग जा और इसी दम से इसका हमराज हो जा। हजरत निजामुद्दीन औलिया का मुरीद बनने के बाद हजरत अमीर खुसरो यह खबर सुनाने सीधे अपनी वालदा के पास गए जिनका नाम था माया देवी,
और जो राजस्थान के एक राजपूत हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, और ये एक कन्वर्टेड मुस्लिम फैमिली थी, और इनका बाप का जो नाम था वो था सैयदा मुबारक बेगम उर्फ बीबी नियाज। तो जब हज़रत अमीर खुसरो ने ये खबर अपनी वालदा को सुनाई कि आज जो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जैसे एक ऊंचे दर्जे के फ़कीर उनके गुरु बने हैं, तो वो बहुत खुश हैं। तो उनकी माँ ने उन्हें बताया कि आज एक और खुशी का मौका है कि आज जो है वो हिंदुओं का यानी हमारा होली का त्यौहार है जो हम सदियों से मनाते आ रहे हैं। तो हज़रत अमीर खुसरो ने उसी वक्त एक कंपोजिशन उन्होंने बनाई। आज रंग है हे माँ रंग हैरी, मोहे पीर पायो निज़ामुद्दीन औलिया, जित देखो मोहे संग हे माँ रंग हैरी। ओ मदर, there is a color of what? Color of spirituality, a color more bright, shiny and natural than all the colors that has been used on the holy festival. Today I found my sheikh, my spiritual master, my spiritual guide. Hey Ma Rang Hari, Mohe Peer Payo, my spiritual master is none other than Khaja Nizamuddin. Mohe Peer Payo Nizamuddin Auliya. Chit dekho mohe sanga, and he is with me everywhere, means his color is everywhere. Died and passed away just after the 6 months when his Sheikh Khaja Nizamuddin Auliya left this world. So the year of leaving this world for both Amir Khusro Rahmatullah and Khaja Nizamuddin Auliya same 1327. The difference is 6 months. सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि आखिर ये सूफीज़म है क्या। सूफियों का मानना ये था कि खुदा तक पहुंचने का जो सबसे आसान और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो तरीका है वो है सिमा यानी संगीत। और सूफियों ने संगीत की इतनी प्रैक्टिस की और उसको इतना ज़्यादा इजाफा किया अमीर खुसरो से पहले भी और अमीर खुसरो के बाद, लेकिन अमीर खुसरो का कंट्रीब्यूशन उसमें सबसे ज़्यादा है, इसलिए उनका नाम हमेशा सबसे पहले आता है। अमीर खुसरो के बाद और भी बहुत सारे म्यूजिशियंस और सिंगर्स हुए हैं सूफियों में जिन्होंने सूफ़ी म्यूज़िक को, सिमा को
कव्वाली के बाद और भी चीज़ों में डाला और वो फिर क्लासिकल में आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का कॉल है कि ये जो रूहानी सिमा है, संगीत है, मौसीकी है, ये इंसान के जिस्म के लिए ग़िज़ा है, यानी फूड है, उसका खाना है, उसकी खुराक है, और इसके बिना इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, ना इसको सुकून मिल सकता है और ना वो खुदा से मिल सकता है। यानी मेडिटेशन के लिए, जिसको हिंदी में हम ध्यान कहते हैं, योग साधना के लिए ये जो सूफ़ी म्यूज़िक है इसको बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। और सूफीज़म के ऊपर बहुत सारी आपको हज़ारों डेफिनेशंस मिलेंगी। एक जो बहुत ही मशहूर डेफिनेशन वो है कि इंसान जो अपनी ज़बान से कहता है और उस पर जो अमल करता है, उसमें जो इंसान बैलेंस करके अपनी ज़िंदगी में चलता है, वो ही सूफ़ी है। इस तरह से अल हुजैरी ने एक डेफिनेशन ये दी कि सूफ़ी जो लफ्ज़ है वो वूल यानी ऊन नामक एक अरबी वर्ड से निकला है, जिसको सूफ़ कहते हैं, और सूफ़ यानी ऊन। और ऊन जो है वो एक ज़माने में टर्की में, जहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, वहाँ सूफ़ियों का ये लिबास था, उनका ये पहनावा था। तो ये लफ्ज़ जो है वो सूफ़ से सूफ़ी बना। सूफ़ का एक और मीनिंग भी है, यानी कि सफाई। तो सूफियों ने यह भी कहा कि तो जिस इंसान ने अपने दिल के अंदर की सारी गंदगी, सारे मैल को निकाल कर झाड़ू दे दी, सफाई कर दी, वही असली सूफ़ी है। सूफ़ी होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मुसलमान हो। अगर आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, तब भी आप सूफ़ी हो सकते हैं, क्योंकि सूफ़ी होने के लिए धर्म की कोई पाबंदी नहीं है। क्योंकि सूफीज़म की जो सबसे पहली बुनियाद है कि ये मज़हब से और धर्म से बहुत ऊपर हैं। मेरा मांगना देख मैं क्या मांगता हूँ, मेरा मांगना देख मैं क्या मांगता हूँ। न कम मांगता हूँ न सिवा मांगता हूँ, तू जैसा गनी है वैसी अता मांगता हूँ। और खुदा की कसम तुझको तुझसे ही मांगता हूँ। मंगते हैं करम उनका, मंगते हैं करम उनका, सदा मांगती रहे। मंगते हैं करम उनका, सदा मांगती रहे। करके मंगते हैं, हमारा हक है, हम तो मंगते हैं, हम तो मंगते हैं। कुछ और मांगना मेरे मशरब में कुफर है, बस देखो मंगते हैं करम उनका, ऐ ताज बरो आओ जरा आओ, इधर से भी उधर से भी, यहाँ से भी वहाँ से भी। ऐ ताज बरो मेरा देखो, हम मंगते हैं तेरे दर के, 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 मंगते हैं। सनदी रखता हूँ मैं सर में मुँह दिखाने की, सनदी रखता हूँ मैं सर में मुँह दिखाने की, सनदी रखता हूँ मैं सर में मुँह दिखाने की, सनदी रखता हूँ मैं सर में मुँह दिखाने की। जबी पे खाक है महबूब के आस्ताने की, तेरे दर के, 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 तेरे किसी अहले सर से मैं कब मांगता हूँ, किसी अहले सर से मैं मांगता हूँ, मांगता हूँ, मांगता हूँ, मांगता हूँ। किसी अहले मैं कब मांगता हूँ, किसी ताजवर से मैं कब मांगता हूँ, किसी ताजवर से मैं कब मांगता हूँ, किसी
किसी तंग नजर से मैं कब मांगता हूँ, किसी तंग नजर से मैं कब मांगता हूँ, मिलेगा तो आका के दर से मिलेगा, मिलेगा तो आका के दर से मिलेगा। और जो आका न देंगे तो फिर कौन देगा। मांगते हैं तेरे दर के, मांगते हैं तेरे दर के, ओ तेरे दर के, तेरे दर के, तेरे दर के, तेरे दर के, तेरे दर के हम मांगते हैं। और ये हकीकत है, सरकार में बैठा हूँ, सरकार गवाह है। हाय हाय, घबराते हैं जब भी अपने बुरे हालात से घबराते हैं, इनकी आवाज ये आती है कि हम आते हैं। Well, Sufism, as you know, that the greatest saint and the greatest spiritual master in Sufism, known as Khaja Mu'inuddin Chishti Ajmeri, he is someone who gave a global message to the entire creation of Allah Jalla wa Ala, to all humanity. And his slogan is something that is known worldwide. A lot of people are using it today, but he is someone who actually implemented it, and that is love for all and malice for none. Love for all and hatred for none. And he makes a beautiful comparison, a beautiful example that he gives about how a spiritual disciple should be, how a true Sufi should be. And he says that a Sufi, a true disciple, a true believer should be like the sun. The way the sun does not differentiate, the rays of the sun benefit everyone universally. In the same way, a true disciple, a true believer of God Almighty should be like the sun. And then he says that he should be like the river. The way the river benefits everyone, does not differentiate between anyone, does not distinguish between the pious from the impious. And also the earth, he says that he should be humble like the earth. This is the global message of Sufism that had a major impact, not only in the Indian subcontinent, but universally in the entire world. And today, unfortunately, the way the path of Islam is being stigmatized with terrorism, I believe that today we need to revive and reinvigorate the teachings of the Sufis to bring people together. As Khaja Nizamuddin Awliya, Mahbub-e-Ilahi says in his famous saying that अगर कांटे बिछाने वालों की राहों में कांटे ही बिछाए जाते रहे तो सारी दुनिया कांटों से भर जाएगी. So that's his belief, that if someone expresses hatred, you should respond by loving them. And that is how you can extinguish the fire of hatred, by the water of love and compassion, clemency, peace and harmony.
कव्वाली की स्टार्टिंग होती है तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का एक तराना है जिसको हम लोग कौल बोलते हैं। मन कुन तो मौला फ़ाली उन मौला दरा दिले दरे दानी हम तोम तनाना नाना तनाना ना रे याला ली याला ली याला याला रे याला लाला याला लाला याला लाला रे मन कुन तो मौला फ़ाली उन मौला उसको उसके अंदर तराना जो फिट करा है हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने। ये हम यहाँ बैठकर हज़रत महबूब इलाही में पढ़ते हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में बैठकर यही हम लोग पहले यही पढ़ा जाता है कव्वाली में। जब कव्वाली की इब्तिदा होती है There is a small anecdote which will show that how Qawwali came into being. One day, Khwaja Moinuddin Chishti Ajmeri was sitting with his disciples and it was evening. Suddenly, he heard some sound coming from a certain distance and he asked one of his disciples to go and search and find out what is this. One of the disciples of Khwaja Moinuddin Chishti Ajmeri, he went there and came back and told to Khwaja, यहाँ से चंद दूरी पर एक हिंदुओं का एक इमारत है जिसमें कुछ बुत रखे हुए हैं और वहाँ वो ज़िक्र खुदा कर रहे हैं जिसको वो भजन या कीर्तन कहते हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को उनका ये अंदाज़ बहुत पसंद आया और उन्होंने उस मुरीद से कहा कि हम भी जो है अपने खुदा की याद में कुछ ऐसा ही भजन कीर्तन करेंगे। उन्होंने अपने हाथ में एक डफ़ लिया और सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने ही स्टार्ट सिंगिंग दी ayats of Quran Sharif on the duff. So this was the beginning of the Qawwali. After the death of Khwaja Moinuddin Chishti Ajmeri, his disciples continued to this style of singing. When Amir Khusro came, he introduced different ragas and the classical touch in the Qawwali. है कि हज़रत अमीर खुसरो ने जो कव्वाली ईजाद की वो कैसे हुई। देखिए, मैंने आपको ये पहले बता दिया है कि कव्वाली की जो बुनियाद है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ज़माने में उनके द्वारा पढ़ गई थी, लेकिन वो कव्वाली नहीं थी। वो सिर्फ उन्होंने तरन्नुम में अरबी में आयतें गाना शुरू किया था। और हज़रत अमीर खुसरो ने जो कव्वाली ईजाद की, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या है और वो है अ म्यूज़िकल कंपटीशन बिटवीन हज़रत अमीर खुसरो एंड गोपाल नायक ऑफ साउथ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। एक बार साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत से एक बहुत बड़े म्यूजिशियन जो गोपाल नायक या नायक गोपाल के नाम से मशहूर थे, वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अपने कई हज़ार मुरीदों और डिसाइपल्स के साथ पहुँचे और वहाँ उन्होंने दरबार में अपनी गायकी पेश की और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से ये कहा और चैलेंज किया कि क्या तुम्हारी पूरी सल्तनत में
कोई आदमी ऐसा है जो मेरी इस गायकी का जवाब दे सके, और अगर नहीं है तो आप मुझे इस पूरे हिंदुस्तान की सरजमी का सबसे बड़ा संगीतकार या संगीत शास्त्री घोषित कर दीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ख़ास जो दरबार की जो बैठक होती थी उसमें वज़ीरों से उन्होंने मशवरा किया, तो सब ने सिर्फ एक ही नाम लिया कि इसका जवाब सिर्फ हज़रत अमीर खुसरो के अलावा कोई नहीं दे सकता। हज़रत अमीर खुसरो जो है उस वक्त दरबार में नहीं थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें ख़ास पैगाम दे के फ़ौरन दरबार में बुलवाया और वो अगले दिन दरबार में हाजिर हुए। उनके सामने सारा मसला रखा गया। तो हज़रत अमीर खुसरो ने इसके पीछे एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि आप उसको दोबारा अगले दिन दरबार में बुलाइए और मैं पर्दे के पीछे रहकर उसके सुनूंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी को बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने खुसरो से पूछा कि तुम पर्दे के पीछे रहकर ही क्यों सुनना चाहते हो? तो अमीर खुसरो ने कहा कि इसके पीछे एक बहुत ही टेक्निकल वजह है, और वो ये है कि अगर मैं उसके सामने बैठ गया उस गोपाल नायक के और उसकी नज़रों से मेरी नज़रें मिल गईं, तो वो जो है वो एक बहुत बड़ा हिप्नोटाइज़र है। वो उसके बारे में मैंने सुना है, मतलब मुझे मालूम चला है अपने मुरीदों से कि वो उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो लोगों को सम्मोहित कर लेता है, और अगर मैं उससे सम्मोहित हो गया तो मैं उसका जो जवाब दे पाऊँगा वो उसमें वो जीत जाएगा और मैं हार जाऊँगा। तो मैं पर्दे के पीछे रहकर उसकी गायकी सुनूंगा और आप उसको दोबारा वो गायकी पेश कराएं और उसके बाद फिर मुझे इसका जवाब देने के लिए कहा जाए। अगले दिन गोपाल नायक को फिर दरबार में बुलाया गया। उन्होंने कई हज़ार मुरीदों के साथ दरबार में अपनी गायकी शुरू की, जिसमें गीत, प्रबंध, छंद ये सब उन्होंने सुनाए, और उसमें एक सवाल थे, वो सब संस्कृत और हिंदी में मिले हुए थे। उसके बाद हज़रत अमीर खुसरो ने पर्दे के पीछे रहकर वो सारा सुना। उसके बाद वो अलाउद्दीन खिलजी के पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे इसके जवाब को तैयार करने के लिए सिर्फ 6 महीने का समय चाहिए। और उस वक्त अमीर खुसरो ने कव्वाल बच्चों की ईजाद की, यानी कि कव्वाली की ईजाद उन्होंने की, और उन्होंने कव्वाली में कौल, कलबाना, तराना, नक्श, गुल, बहार, बसीत, तिरवट, चतुरंग, सुहेला, सवेला, खमसा, सनत मुनकलिब, मरसिया, रुबाई, ये सब चीज़ें बनाई। और इनमें से एक एक चीज़ जो है वो उस कंपटीशन में गोपाल नायक द्वारा पूछे गए सवाल का कि एक एक सवाल का एक एक जवाब था, और उसके बाद वो कंपटीशन जीत गए। इसमें एक बहुत ही ख़ास बात थी जो अमीर खुसरो ने कंपटीशन के बाद गोपाल नायक से कही, क्योंकि ये कंपटीशन का जवाब अमीर खुसरो ने खुद नहीं दिया, उन्होंने इसमें उन बच्चों को पेश कर दिया। और अमीर खुसरो ने वहाँ पे ये साबित किया कि ये देखो कि तुमने मुझसे जो सवाल खुद अपने शागिर्दों के साथ मिलके किया था उसका जवाब तो मेरे सिर्फ बच्चे दे सकते हैं, यानी मैं तो उनका गुरु हूँ ना, तो मतलब मेरे बच्चे जब तुम्हारे सवालों का जवाब दे पा रहे हैं तो सोचो कि गुरु क्या देगा। ये उन्होंने साबित कर दिया और इस वजह से वो कंपटीशन जीत गए। कंपटीशन जीतने के बाद नायक गोपाल जो है उन्होंने अपने आप को अमीर खुसरो के हवाले कर दिया और ये कहा कि आज से मैं आपका ग़ुलाम और मुरीद हूँ। लेकिन अमीर खुसरो जो है उनके ऊपर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का साया था और उनकी टीचिंग्स का असर था। तो उन्होंने गोपाल नायक को उठाया और कहा कि आप मेरे ग़ुलाम नहीं और ना ही मेरे शागिर्द हैं, क्योंकि आप वाकई में बहुत गुणी हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जब आपने ये सवाल किए थे तो मेरे भी पसीने छूट गए थे, और सिर्फ अपने पीर निज़ामुद्दीन औलिया की वजह से मैं आपके सवालों का जवाब दे पाया और जीत पाया। और इस तरह से ये कव्वाली ईजाद हुई। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम
जब सरकार के आस्थान में कव्वाली परफॉर्म करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग एक अलग ही दुनिया में आए हुए सरकार को सुनाने आते हैं। हम खुद अपने आप को खो जाते हैं इसके अंदर। ऐसा लगता है कि हम अपने अल्लाह के सामने कव्वाली कर रहे हैं। कव्वाली जो है ना, सूफ़ी संगीत जिसे आप कहते हैं या कव्वाली कहते हैं, वो हमारे लिए एक इबादत का दर्जा रखती है, एक इबादत है सूफ़ी कव्वाली, क्योंकि उसमें अल्लाह रसूल बुज़ुर्गान दिन का नाम आता है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गौस पाक, इनका जिक्र करते हैं। तो कव्वाली जो हमारे लिए है वो ठीक है कि हमारे लिए एक ज़रिया भी है, हम 4 पैसे कमाते भी उसमें, ऐसी बात नहीं, लेकिन सही मानों में सूफ़ी कव्वाली जो है उसमें हमारे लिए वो कव्वाली जो है एक इबादत का दर्जा रखती है। और हम जब उसको गाते हैं तो दिल से गाते हैं, यानी हृदय से गाते हैं, हार्ट से गाते हैं। और हम उसको ये समझते हैं कि अगर हमने कव्वाली गा ली दिल से, क्योंकि बुज़ुर्गान दिन के अल्लाह के दरबार में, हुजूर के दरबार में अगर एक हमारा मिसरा भी कबूल हो गया तो हमें पता है कि हमारी 7 पुश्ते जो हैं वो जन्नती हैं। जब यहाँ कव्वाली पढ़ते हैं तो एक अलग ही मंज़र होता है वो, जो कि बयान से बाहर है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर लोग आएँ और यहाँ पर रूहानी फैज़ पाएँ। और यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म के आते लोग और यहाँ पर फैज़ पा के जाते हैं। और सभी को यहाँ से सबके खाली झोली आती हैं और भर के लेके जाते हैं झोलियाँ। कोई भी इंसान कितनी भी टेंशन में हो, कितने भी फ़िक्र में हो, कैसे भी हालात हों, वो जब इस दरबार में आता है तो इनके हुक्म से, अल्लाह के करम से सब बेहतर होता जाता है। बाबा रहमत गए गुजर कुन, बाबा बे जिब्रील गए जिबीसा, बाबा रहमत गए गुजर कुन, बाबा बे जिब्रील गए जिबीसा, सलाम रब्बी अला हबीबी गए बाबा वो सलाम बरखा, सलाम रब्बी अला हबीबी गए बाबा वो सलाम बरखा, बाबा पे रहमत गए गुजर कुन, बाबा पे जिब्रील गए जिबीसा। Do not hate people. Commonly in followers of various religions, they promote that hate the sinner. But the message of Sufism is hate the sin, not the sinner. Not the one who commits the sin. Hate the sin of the sinner and love the sinner. And that is how we can bring humanity together. And I'm proud to be the descendant of Baba Farid Masood Ganji Shakar, because Khwaja Nizamuddin Auliya never married. He brought Baba Farid's grandson, the son of Bibi Fatima, who was married to a Sayyid. Sayyid means the descendant of Prophet Muhammad. So we are from 2 families at a single moment. From Prophet's family and also from Baba Farid's family. And since then till now, 8 centuries have passed. We are still in capital. And we are living with harmony, with peace, serving people, carrying our legacy, our tradition, custom, rituals, and of course, our mission. मदीना
जाएंगे हम, जाएंगे